یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا۔ پادری سلوبا نے کہا، اس میں تمہاری جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں پناکیا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت راضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناتف کے پادری سلوبن نستونا نے سب سے پہلے خالد کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور پیش قیمت موتی بھی تھے جو کسرا اردشیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ خالد کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبا بن نستونا کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبا بن نستونا عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ عطا کرے گا اور کسرا کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیے کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کیے جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کے روز سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بناکیا اور بسما کو ہر طرف کا تحفظ مہیا کریں۔ پادری سلوبا بن نستونا کو اس قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبا اس علاقے کے نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبا نے خالد کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی داغ دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑی ہی وسیع علاقے مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ خالد نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہیں سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار۔ خالد نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الزور قعقاع اور مسنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے تھے۔ اس طرح جون 633 عیسوی ربیع الاخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوس کارواں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج ذرا پوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری ذرا پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہوا۔ وہاں اب کسرا اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے یہ، اور یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ جو ایسی قوم کے افراد ہوتے ہیں اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ میدان میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد کے جاسوس میدان میں ہی نہیں کسرا کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد کے لیے امید افزا تھی۔ میدان کے تخت اب وہ تختہ بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے میدان سے آ کر خالد کو بتایا یہ تخت کسرا کے شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے اور شیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔
हर बीवी अपने बेटे के सर पर किसरा का ताज रखना चाहती है। उर्द शेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बिठाया गया। 2 रोज बाद वो अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि इसका सर इसके धड़ से अलग था। 2 निहायत खूबसूरत और जवान लड़कियों को, दरबान को और 2 पहरेदारों को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। इस शहजादे के कत्ल के शोबे में इन सब के सर कलम कर दिए गए। इसकी जगह उर्द शेर की एक और बेवा के बेटे के सर पर किसरा का ताज रखा गया। तीसरे दिन उसने शराब पी और बेहोश हो गया और जरा देर बाद मर गया है। अब 7-8 आदमियों और 3 जवान औरतों को शहजादे को शराब में जहर पिलाने के शोबे में कत्ल कर दिया गया। सलार आला तीसरा शहजादा तख्त पर बैठा। दूसरे रोज वो महल के बाग में एक बड़ी दिलकश रक्सा के साथ टहल रहा था। कहीं से बैक वक्त वो 2 तीर आए, एक इसकी आंख में और दूसरा इसकी शाही रग में उतर गया। किसरा का तख्त फिर खाली हो गया। तख्त अभी तक खाली है। किसरा के वजीर और 2 सालारों ने ताजोशी का सिलसिला रोक दिया है। इन्होंने फैसला किया है कि जो इलाके फारिस की शहनशाही में रह गए हैं, इन्हें मुसलमानों से बचाया जाए। इन्होंने दिजला के पार अपनी फौज को इस तरह फैला दिया है कि हम जिस तरफ से भी पेशकदमी करें हमें रोक लिया जाए। इनकी इस फौज की नफरी कितनी होगी? खालिद ने पूछा। हमसे दुगनी होगी। जासूस ने जवाब दिया, इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। मैदान दिजला के पार है। आतिश परस्त हमें दरिया पार नहीं करने देंगे। अल्लाह की राह में लड़ने वालों को नहीं रोक सकते। खालिद ने कहा, आतिश परस्त हमें रोकने के काबिल नहीं रहे। जिस कौम के सरदारों में फूट पड़ जाती है, उस कौम की किस्मत में तबाही के सिवा कुछ नहीं रहता। हम मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। खालिद ने अपने सलारों से कहा, हम दुश्मन को संभलने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद अपने सलारों को कूच के हकाम दे ही रहे थे कि इन्हें इतला दी गई कि मदीना से खलीफतुल मुस्लिमीन का कासिद आया है। खालिद ने फौरन कासिद को अंदर बुलाया। क्या मदीना के लोग हमें अच्छे नाम से याद करते हैं? खालिद ने कासिद से पूछा। खुदा की कसम, मदीना की हवाएं भी आपको याद करती हैं। कासिद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आपका जिक्र करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अब माए खालिद जैसा एक और बेटा जन सकेंगी। लोग हर रोज आपकी खबर का इंतजार करते हैं। पैगाम क्या है? कासिद ने पैगाम खालिद को दे दिया। खालिद पढ़ते जा रहे थे और इनके चेहरे का तासुर बदलता जा रहा था। वहाँ जो सलार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए। अमीरुल मोमिनीन के सिवा मुझे कौन रोक सकता था? खालिद ने कहा और सलारों से मुखातिब होकर बोले, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा है कि अयाज बिन गनम दुमतुल जंदल में लड़ रहा है। अल्लाह इसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होकर वो हमारे पास आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जब अयाज अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें। उसके आने तक हम यहाँ वहाँ रुके रहें। खालिद के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह व नुसरत की जो चमक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सलारों के इस इजलास पर सन्नाटा तारी हो गया, जिसकी वजह ये नहीं थी कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने पेशकदमी रोक दी थी, बल्कि वजह ये थी कि खालिद के चेहरे पर ऐसा तासुर कभी कभी आया करता था और ये तासुर एक तूफान का पेश खेमा हुआ करता था। किसी भी सलार को खलीफा के हुक्म के मुतालिक कोई बात कहने की जुर्रत न हुई। चंद मिनट बाद खालिद गहरी सोच में बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे। खालिद ने कहा, आराम करना चाहता है तो कर ले और वापसी का सफर अख्तियार कर। अमीरुल मोमिनीन से मेरा और मेरे साथियों का सलाम कहना। फिर कहना कि जंग के हालात को वही से बेहतर समझते हैं जो मैदान जंग में होते हैं। वहाँ से इतनी दूर बैठकर कोई फैसला करना लड़ने वालों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। फिर कहना कि वलीद का बेटा खिलाफत की हुक्म अदूली की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन हालात ने मजबूर किया और इस्लाम को खतरा लाहिक हुआ तो मैं हुक्म की परवाह नहीं करूंगा। मैं खिलाफत मदीना का अमीन और इस्लाम का पासिबान हूँ। मैं दुश्मन को अपने ऊपर आता देखकर एक शख्स के हुक्म को एक तरफ रख दूंगा। मुझे खुशनुदी अल्लाह की दरकार है, अल्लाह के किसी बंदे की नहीं। मैं मालूम करूंगा कि सालार अयाज के मुआज
की सूरत हाल क्या है। हो सकता है इसे मदद की ज़रूरत हो और ये भी हो सकता है कि वो अपने मुहाज से जल्दी फारिग ना हो सके और आतिश परात इस अरसे में संभल जाए। और खलीफतुल मुस्लिमीन से कहना कि हमने जरतश की आग को सर्द कर दिया है। अल्लाह ने हमें ऐसी फतह अता की है कि जिसने किसरा के महल को शैतान का बसेरा बना दिया है। कुर्द शहर के तख्त पर जो कोई बैठता है वो 2 रोज बाद अपने भाइयों के हाथों कत्ल हो जाता है। फारिस की शहनशाही और इसकी शान व शौकत को हमने दिजला और फरात में डबो दिया है। हीरा जैसा फारिस का हीरा कहते हैं हमारी फौजी अड्डा है, हमारे लिए दुआ करते रहें। कासिद की रवानगी के बाद खालिद ने एक कमांडर को बुलाकर कहा कि अपने साथ 2 बड़े तेज और तवाना सिपाही लेकर बहुत तेज रफ्तार से दुमातुल चंदल जाए और गौर से देखे कि वहाँ क्या सूरत हाल है और सलार अयाज बिन गन्नम कब तक फारिग हो सकेंगे और क्या इनके जल्दी फारिग होने का इम्कान है भी या नहीं। कमांडर इसी वक्त रवाना हो गया। खलीफतुल मुस्लिमीन के इस हुक्म को जो तुमने सुना है जहन से उतार दो। खालिद ने अपने सालारों से कहा, दिल में खिलाफत मदीना का पूरा एहतराम रखते हुए इन हालात को देखो जो हमने आतिश परस्तों के लिए पैदा कर दिए हैं। अगर हम अयाज के इंतजार में यहीं बैठे रहे तो किसरा की फौज को संभलने का मौका मिल जाएगा। खुदा की कसम तुम सब यकीन के साथ कह सकते हो कि किसरा की फौज पर तुमने जो खौफ तारी कर दिया है वो इन्हें किसी मैदान में तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहरने देगा। और मैदान के मोहल्लात में तख्त नशीनी पर जो कत्ल व गारत हो रही है वो हमारे हक में जाती है। कौम के सरदारों में जब तख्त नशीनी वजह बेकार बन जाती है तो फौज ऐसी तलवारों की मानंद हो जाती है जो बड़े ही ढीले और कमजोर हाथों में हो। हाँ इब्ने वलीद सलार आसिम बिन उमरू ने कहा, किसरा के जिन सलारों ने फारिस के बचे हुए इलाकों में अपनी फौज फैला दी है वो सलार भी तख्त के ख्वाहिशमंद होंगे। वो हम पर फतह हासिल करके फारिस के तख्त पर काबिज होना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फारिस जल्दी तबाह होगा। सलार अदी बिन हातिम ने कहा, सलारों के दिमागों पर जब तख्त व ताज सवार हो जाता है तो वो अपने मुल्क और कौम को बड़ी जल्दी तबाह कर देते हैं। जब तवज्जो तख्त के लफ्ज और अपनी जात पर मरकूज हो जाती है तो निगाहें दुश्मन से हट जाती हैं। खालिद ने कहा, मैं इन हालात से फायदा उठाऊंगा। अपनी फौज को तैयारी की हालत में रखो। हम आखिरी फैसला दोमतुल चंदल की सूरत हाल मालूम हो जाने पर करेंगे। दोमतुल चंदल की सूरत हाल सलार अयाज बिन गन्नम के लिए मखदूश थी। दोमतुल चंदल इस दौर का मशहूर तिजारती मरकज था। आज के इराक और शाम की शहर हैं यही आकर मिलती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पर चढ़ाई की थी तो इस दौरान इन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोमतुल चंदल तक पहुँचे और यहाँ के किले से किलेदार उकैदर बिन मालिक को गिरफ्तार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया था। उकैदर बिन मालिक ने इस्लाम तो कबूल ना किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली थी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इर्तिदार का फितना उठा तो इस शख्स ने मदीना की वफादारी तर्क कर दी और ईसाइयों और बुत परस्तों को साथ मिलाकर इसके सरदार बन गया था। अबू बकर ने उकैदर बिन मालिक की सरदारी को खत्म और इसके ज़हर असर गैर मुस्लिम कबाइल को अपने ज़हर नगीन करने के लिए सलार अयाज बिन गन्नम को भेजा था। अयाज तजुर्बेकार सलार था, लेकिन दोमतुल चंदल पहुंचा तो देखा कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला जो कलब कहलाता था अपने इलाके के दिफा के लिए तैयार था। ये कबीला जंग व जदल में शहरत रखता था। अयाज ने किले को मुहासरे में ले लिया, लेकिन ईसाइयों ने बाहर से मुसलमानों को मुहासरे में ले लिया। अयाज की फौज को आगे भी और अकब में भी लड़ना पड़ा। इस सूरत हाल ने जंग को ऐसा तोल दिया जो खत्म होता नजर नहीं आता था और यह सूरत हाल अयाज के लिए रोज बरोज मखदूश होती जा रही थी। खालिद का भेजा हुआ कमांडर वापस आया तो इसने खालिद को बताया कि अयाज बिन गन्नम कैसे आएगा, उसे तो खुद मदद की जरूरत है। कमांडर ने दोमतुल चंदल में अयाज और दुश्मन की फौजों की पोजीशन तफसील से बयान की। खुदा की कसम मैं यहाँ इंतजार में फारिग नहीं बैठ सकता, खालिद ने पुरजोश आवाज में कहा। बेशतर इसके कि दुश्मन आगे आ जाए, मैं आगे बढ़ूंगा। मैदान की शहर पनाह मुझे पुकार रही हैं। कूच की तैयारी करो। मशहूर मौरख तिबरी और अरबलाजरी ने लिखा है कि खालिद की खुदसरी और सरकशी मशहूर थी। वो चैन से बैठने वाले सलार नहीं थे। इस सूरत हाल में
کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور میدان کی شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ میدان کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد کو خبر دینی شروع کر دی کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی۔ ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے 2 ہٹ کر واقع تھا۔ انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخری ربیع الاول 12 ہجری کے وسط میں خالد نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے مکر اور باغی ہو جاتے ہیں۔ ہیرا میں خالد نے قعقاع بن عمرو اور اقرع بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد ہیرا میں سالار ایاز بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا۔ نہ انہوں نے امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز بن غنم کا انتظار کیے بغیر میدان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف پہروں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا میدان کے حکام اور امراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بلا کر ڈالا ہے اور تحری عیاریوں کو کامیابی سے محروم رکھا ہے اور تم آپس میں ہی دست و گریبان ہو رہے ہو۔ اللہ اگر تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی رستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تمہیں زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد نے میدان کے حکام اور امراء کے نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے امراء کے نام۔ تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شہدائی ہے جتنا یافتہ تم شراب پر ہو۔ خالد نے شاہ فارس کے نام ہیرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا اور امراء وغیرہ کے نام خط لے جانے والا انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ صابات کہلاتا تھا۔ صابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کے سب سے بڑا شہر تھا۔ صابات کا حاکم یا امیر شیرزاد تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔ وہ دانشمند اور عالم تھا، اس میں عسکری صلاحیت ذرا کم تھی، لیکن انبار میں فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے عسکری سوجھ بوجھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی فوج کے علاوہ اسے ساتھ عیسائیوں کی بے شمار نفری تھی۔ اتنی زیادہ فوج کے علاوہ انبار کے شہر پناہ بڑی مضبوط تھی اور دفاع کا یہ انتظام بھی تھا کہ شہر کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی تھا۔ اس طرح انبار کو ناقابل تسخیر شہر بنا دیا گیا تھا۔ خالد کے لیے تو یہ اس لیے بھی ناقابل تسخیر
तस्कीर था कि इनकी फौज की कुल नफरी 9000 थी। अंबार के जासूसों ने मुसलमानों की फौज को शहर की तरफ आते देखा तो इन्होंने शेरजाद को जा बताया। फिर सारे शहर में खबर फैल गई कि मदीना की फौज आ रही है। शेरजाद दौड़ा गया और दीवार पर जा चढ़ा। इसे जासूसों ने मदीना की फौज की नफरी 10,000 बताई थी। नहीं, ये धोखा है। दीवार पर खड़े शेरजाद ने मुसलमानों की फौज को देखकर कहा, जिन्होंने हमारी इतनी जबरदस्त फौज को यके बाद दीगरे 4 लड़ाइयों में शिकस्त दी है, वो इतने हमाक नहीं हो सकते कि इतने बड़े किले बंद शहर पर हमले करने के लिए इतनी कलील फौज लाए। ये इनकी फौज का हरवाल होगा। अगर हरवाल नहीं तो इतनी ही फौज पीछे आ रही होगी, ये किसी और सिमत से आ रही होगी। शहर के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। इन्होंने मुसलमानों के बड़े दहशतनाक किस्से सुने थे। इन्होंने अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के जख्मियों को और मैदान जंग से भाग कर आने वालों को देखा था। इनका खौफ व हिरास भी देखा था। पसपाई में अपने आप को हक बजानिब ज़हर करने के लिए इन्होंने लोगों को जंग के ऐसे वाक़यात सुनाए थे जैसे मुसलमान जिन भूत हों। अब वो मुसलमान इनके इतने बड़े शहर को मुआसरे में लेने आए थे। इन्होंने अपने जहवरात और रकमें और अपनी जवान लड़कियां छुपानी शुरू कर दी। शहर में खौफो व हिरास और भगदड़ ज्यादा देर ना रही, क्योंकि दीवार के ऊपर से बुलंद आवाज सुनाई देने लगी कि मुसलमानों की तादाद इतनी थोड़ी है कि वो सारी उम्र शहर की दीवार तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दीवार के ऊपर कहके बुलंद होने लगे, मुसलमानों, आतिश परस्त मुसलमानों पर आवाजें कस रहे थे, तुम्हें मौत यहाँ तक ले आई है। जिंदा रहना है तो मदीना को लौट जाओ। शहर पनाह पर तीर अंदाजों का हजूम खड़ा था। मुसलमानों ने शहर को मुआसरे में ले लिया था और खंदक ने इन्हें रोक लिया। तिबरी और याकूत लिखते हैं कि खंदक दीवार के इतने करीब थी कि इसके करीब आने वाले ऊपर से छोड़े हुए तीरों की जद में आ जाते थे। ऐसा न होता तो भी खंदक को फैलाना मुमकिन न था। ये बहुत चौड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर हंस रहे थे और वो हजारों की तादाद में दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हों। खुदा की कसम, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मौरख लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिल तस्कीर था, लेकिन खालिद के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर नहीं था। वो पुरसकून थे। रात को इन्होंने अपने खेमे में अपने सलारों को यकीन दिलाया कि फतह उन्हों की होगी, लेकिन कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। इन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी किलों की हुआ करती है। सुबह तुलू होते ही खालिद घोड़े पर सवार हुए और शहर के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे। इन्होंने अपने सालारों से कहा कि इन्हें 1000 ऐसे तीर अंदाजों की जरूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा एतमाद हो और जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींचे तो कमाने दौड़ी हो जाएं और आम तीर अंदाजों की निस्बत इनके तीर बहुत दूर जाएं। जल्दी, खालिद ने कहा, बहुत जल्दी। हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीर अंदाज आ गए। ये चुने हुए थे और सब के सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओ कि कमाने तुम्हारे हाथों में लटक रही हो। खालिद ने कहा, ऐसा लगे कि तुम टहलते टहलते खंदक के करीब चले गए हो। यूं ही खंदक के करीब जाओ, नहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो, कमान में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ। बेहतर इसके कि वो जान सके कि ये क्या हो गया है। एक एक इसके बाद फिर एक एक तीर चलाओ। मुहर्रिक तिबरी के मुताबिक खालिद ने हुक्म दिया था।